Uh, Today we are going to study about the workers controlling system. Now we know that I have already many times mentioned that slaves were uh, part and parcel and the backbone of the agroeconomy or manufacturing field in the manufacturing field and other productive fields, production field. They contributed a lot in the production system, agriculture, manufacturing, and certain other field. Slaves. The slaves just were the backbone of the uh, Roman economy. Roman economy. Or this is the, and we know that slavery now reached its climax growth in ancient Roman world growth, and because the basic structure of the economy was carried on by the slaves. Understand? And Roman Empire, the last republic, was flooded with the cheap slave labors. Or in this Roman Empire, the slaves were in abundance in influx in the society, and these were and the aristocrat now derived huge surplus from the प्रोडक्शन एंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर जो वहाँ की जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था जो एलिट क्लास था दे नाउ amassed the huge profits by deploying the slaves at the war or whether particularly the major their engagements were in the agriculture or the mining agriculture and even other field also uh, even other field. But the basic agriculture and the mining they had, and now by the law, slaves had no legal rights. उनका कोई वैधानिक rights नहीं था. पहला, they were considered the property of their masters. They were owned by their masters, and they were supposed as a property, as a commodity in the hands of their masters. Means regarding their all kinds of the decisions regarding them, their life and their existence was taken by the masters. So the slave had their no own rights. People they were completely deprived of the rights, and whatever the and slaves were like the commodities, and now moreover slaves were just as like the commodity who could be the purchased and sold जो परचेज और सोल्ड किए जा सकते हैं कमोडिटी जैसे हम लोग कोई कमोडिटीज होता है सेल करते हैं इनएनिमेट गुड्स को और हम सेल आउट करते हैं फिर उसे तो उसी तरह लाइक देवर यूज्ड और देवर लाइक द कैटल जिस तरह से कैटल्स को मार्केट में फेयर्स में उसको सेल आउट किया जाता है तो सिमिलरली द दे वर द सोल्ड इन द मार्केट लाइक द कैटल्स एंड नाउ और नेक्स्ट थिंग दैट कि मास्टर हैड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऊपर जो मास्टर होता था मास्टर्स तो एब्सोल्यूट अधिकार था उसका कंप्लीट पूर्ण अधिकार था उन पे पूर्ण राइट्स था उसका एंड मोर और स्लेव्स सफर्ड कंप्लीट लीगल डिप्राइवेशन and were denied any sort of place in society or sorry लीगल कोई उन्हें लीगल राइट नहीं था और दे वर डिनाइड एनी सॉर्ट ऑफ प्लेस इन द सोसाइटी समाज में सोसाइटी में उनका कोई एक प्लेस नहीं था only as a goods and commodities in the hands of their masters. This is the and Roman aristocracy had acquired the vast हम जानते हैं कि जो वहाँ रोमन एरिस्टोक्रेसी था यानी इलिट्स जो थे उनके पास वास्ट state land, acres of thousands acres of the land aristocracy had.
एक एरिस्टोक्रेट्स के पास 1000 acres ऑफ द लैंड होता था, वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड एंड वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द एम्पायर, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न पार्ट का पोर्शन था एम्पायर का, जिसमें कि स्पेन, गॉल, जैसे पुर्तगाल भी था, स्पेन था, सम पार्ट ऑफ द जर्मनी था, इटली था, ये वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो स्लेव से जो ऑनर्स होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, उनके पास वास्ट स्ट्रेच ऑफ द लैंड होता था, अंडरस्टैंड, एंड अपॉन दोज लैंड्स स्लेव्स वेर डिप्लॉयड एट द वर्क, उन्हें काम करने के लिए उस पर डिप्लॉयड किया जाता था। एंड उसका मेन एंड फर्स्ट, और इन स्टेट्स जो उनका होता था, इन स्टेट्स का सर्टेन नाम था वहाँ पे, ये लैटिफंडिया, जस्ट लैटिफंडिया, लैटिफंडिया इन स्टेट्स को कहा जाता है, वास्ट स्टेट्स ऑफ द लैंड्स वेयर नेम्ड एज एंड टर्म्ड एज द लैटिफंडिया, और इन द एग्रीरियन इकोनॉमी में, वहाँ की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी था उसमें इसी नाम से इट वॉज नोन फ्रॉम दिस वर्ड। And Western Europe, agriculture labor on latifundia was carried out particularly by the slaves. मैंने कहा कि जो agriculturous जो land होते थे, it was the cultivated and carried out or carried out by the slaves. They perform the work. Men slaves now much have the 90% of mining or the handicraft production, और इन स्लेव्स को 90% ऑफ द माइनिंग में अगर देखा जाए तो 90% स्लेव्स ही थे, और ये मोर ओवर तो हैंडीक्राफ्ट्स में जो छोटे मोटे इसमें ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, तो इसमें जो है इन दिस कॉटेज इंडस्ट्री ये स्लेव्स एम्प्लॉयड थे, 90% पूरी, 10% कुछ और। तो ये दो जगह पे माइनिंग पर भी 90%, मतलब ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में इनको डिप्लॉयड किया जाता था। एंड मोर ओवर, और रोमन स्टेट एक्सरसाइज्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल पर थे। अब ये है कि रोमन जो स्टेट था, स्टेट की तरफ से भी इन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखा जाता था। दे वर केप्ट एंड हाउ ए नंबर ऑफ एट्रोसिटीज वेयर इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम, और इन पर तरह तरह के अत्याचार। Slaves were now, they had to live under the state of atrocities, and different kind of the exercised upon them, and moreover slaves captured from the particular area were not kept together। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि स्लेव्स का कभी कभी रिवोल्ट भी करते थे, और इस रिवोल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए या बचने के लिए, स्केप करने के लिए, इन्हें जहाँ से खरीदा जाता था, फ्रॉम वेयर दे वेर ब्रॉट, उस एरिया में इन्हें नहीं रखा जाता। दे वेर ट्रांसफर्ड, जैसे नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह कर दो, वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अपने इलाके में क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वहाँ वेयर दे कुड नाउ रेज द वॉइस ऑफ द इवन द स्टूड रिबेलियंस, स्टार्ट रिबेलियंस, तो वहाँ ये रिबेलियंस भी कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं स्लेव से इन्फ्लिक्टेड स्पेशल केयर लिया जाता था, सो दैट, और इन्हें यूनाइट न हो, दे कुड नॉट यूनाइट टुगेदर, तो दैट्स व्हाई दे वेर नाउ केप्ट और इंगेज इन डिस्पर्स्ड मैनर में, अलग अलग इनको रखा जाता था। इन्हें एक लैंग्वेज का अगर बोलने वाले हैं स्लेव्स, तो नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सअप किया जाता था, और इधर से इधर इनकी ट्रांसफर शिफ्टिंग होती थी, सिंस दे कुड नॉट कम टुगेदर एंड मेक एनी यूनियन, और कोई इस तरह का यूनियन या कोई यूनिटी न बनाए और रिवोल्ट न करे। इसलिए ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते थे स्लेव्स के रिवोल्ट्स को रिप्रूफ करने के लिए, अंडरस्टैंड। एंड मोर ओवर टुगेदर स्पेशल केयर वॉज टेकन डिस्पर्स देम, so that they could not be able to make the any solidarity among themselves, वो कोई solidarity नहीं बनाएंगे, इसीलिए for that reason they were kept different places, हर जगह different places में रखे जाते थे। और moreover many kinds and further retain no kinship
इसके साथ साथ पहला था कि नौ ये लैंग्वेज, मैंने कहा कि लैंग्वेज के ग्राउंड पर इन्हें अलग डिफरेंट, और स्लेव्स मेंटेन्ड नो फैमिलीज, ये फैमिली नहीं मेंटेन करते थे। सेकेंड, नो कीन, कोई ब्लड रिलेशंस नहीं मेंटेन करने दिया जाता था, इट वाज नॉट, एंड मोर ओवर implied on particular states. The slaves maintained the now families retain no kinship, slaves no identity on their own, इनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं, even they had their no own names, they were given the names of their by their master, उनका master उनका name देता, their masters, and they had no any their own name. And moreover, the institution of slavery deeply rooted both the Mediterranean or Near East, Mediterranean इलाके में अगर देखा जाए एरिया में, तो this slavery was deeply rooted, or Near East means the Syria, Turkey, सीरिया, टर्की और इराक, ये जो इलाका था इधर, यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम जो था दैट वाज द वेरी मच डिफ्यूटेड, और moreover Mediterraneans or near Constantine, just the Roman emperor, Christianity द स्टेट रिलीजन इन द 4th century, इसने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया, और उसमें क्रिश्चियनिटी को माना जाता है कि दिस इज द वेरी लिबरल एंड अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, अंडरस्टैंड, बट इवन देन नो नो एनी फेट, इनके फेट में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं लाएगा, क्रिश्चियनिटी लाई गई, लिबरल, पीस, ट्रैंक्विलिटी, all things were established, but no any relief came in their bags. And moreover, inseparable part of Roman economy, और slaves अब जानते हैं कि रोमन इकोनॉमी के inseparable, inalienable part थे, and inseparable, and empire's bulk of labors was performed by them. कई तरह के वर्क करते थे स्लेव्स, इट वाज द एंड गिवन, आपको बेनिफिट के माइनिंग्स में भी थे ये, एग्रीकल्चर में भी थे, छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट्स भी काम करते थे ये, अंडरस्टैंड, तो बल्क ऑफ द वर्क वाज डन बाय देम, और स्लेव्स और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लगभग आप कहें तो हम लोग समझते हैं 48% टोटल पॉपुलेशन, 45 से 48% देयर पॉपुलेशन वाज देयर, एंड during reign Emperor Augustus, Roman upper class were often brutally towards the slaves. लेकिन जो upper class था Roman, they had a very brutish approach and attitude towards the slaves, and they tortured state, and they had no any sympathy, very stern behavior. They treated sternly and very firmly. And on the other hand, if you see the behavior of the common man, their behaviors seemed to be the very sympathetics, and the behavior they had they looked them as the compassion, वो compassion के व्यू से, काइंडनेस के व्यू से उनको देखते थे, एटीट्यूड, लेकिन जो अपर क्लास था, दे हैड वेरी हार्श एटीट्यूड and harsh views towards them. This was the conditions, and the now falling under the 1st century में देखा जाए, अगर हम आगे बढ़े तो now peace was and the warfare less widely spread, everywhere peace था, consequently supply of slaves tended decline, लेकिन इस conditions में warfare became less widespread, लेकिन 1st century के बाद slave ये जो नंबर थे सडनली वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, एंड देयर, क्योंकि इसमें क्या था, क्यों ऐसा होता, क्योंकि पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन रोमन एम्पायर 1st सेंचुरी, और ज़्यादातर स्लेव्स कहाँ से आते थे, कैप्चर्ड होते थे, वॉर्स होते थे, उन वॉर में इनको कैप्चर करके लाया जाता था, कैप्चर किए जाते थे और इन्हें डिप्लॉय किया जाता था, अंडरस्टैंड, तो वॉर तो होता नहीं था, तो स्लेव्स की जो सप्लाई की पकड़ के कहाँ से लाएंगे भाई, वार तो हो नहीं रहा है, तो इनके नंबर्स जो है ये दैट बिगेन टू बी द फॉल, ये धीरे धीरे नंबर इनके कम होने लगे,
Understand? As a result, what happened? This was the alarming for the labor crisis was going to be there. अब ये एक लेबर क्राइसिस होने जा रहा था क्योंकि वर्कर्स क्राइसिस होना था रोम में एंड नाउ ये स्लेव डिक्लाइन और इन दिस वे द स्लेव्स वेयर कंपेल्ड टू टर्न आइदर टू ब्रीडिंग। इसको मेंटेन करने के लिए द स्लेव्स वुमेन जो थी उनको इनकरेज किया गया कि टू प्रोड्यूस द मोर एंड मोर चिल्ड्रेन। ब्रीडिंग पॉलिसी मोर ब्रीडिंग उन्हें फोर्स किया गया कि स्लेव ब्रीडिंग से या सब्स्टिट्यूट लाइक द स्लेव ब्रीडिंग्स किया जाए, ये पॉलिसी अपनाई, इनकरेज किया गया। और एक स्लेव्स फादर एंड मदर्स के जो बच्चे होते थे वो भी स्लेव होते थे, तो इन्हें इनकरेज किया गया कि नाउ मोर एंड मोर चिल्ड्रंस प्रोड्यूस मोर, अंडरस्टैंड, टू मीट द लेबर क्राइसिस थे। लेकिन फिर भी नहीं, तो एक अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट और ढूंढा गया। ये सब्स्टिट्यूट था क्या? फ्री लेबर्स, या जिसको हम वेज लेबर्स भी कह सकते हैं, वेज लेबर। अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो स्लेव लेबर था वो ग्रेजुअली नाउ टुक द प्लेस बाय द फ्री लेबर, और नाउ द पीपुल बिगेन, और द जो एरिस्टोक्रेसी था वो फ्री लेबर को ही ज़्यादा पसंद करने लगा। अब यहाँ पे क्यों? वाई द स्लेव्स वेयर not the free laborers and the wage laborers were preferred? Why? Reason was that they were the cheaper, वो सस्ते पड़ते थे। उनका डिप्लॉयमेंट अगर वर्क में किया जाए, क्यों? कि दे वेयर द हायर्ड लेबर्स वेयर पेड ओनली फॉर द वर्किंग द डेज, एवरी डे उनको पे किया जाता था। लेकिन स्लेव्स अगर रखे हैं आप, इफ समवन kept the slaves, so they had to fed on 2 times, and they have to make the more expenditure upon the slaves। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था क्योंकि उसे रखना होता था, खिलाना होता था, कपड़े देना होता था, लाइक दैट, रादर इन कंपैरिजन टू द डेली वेजेस। डेली वेजेस क्या है? वर्क किया, पैसा लिया, चला गया। लेकिन स्लेव्स क्या है? उनके यहाँ रहता है, ही हैव टू द अपकीपिंग के लिए उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा मालिक को, ओनर को करना होता था। तो इसलिए लेटर क्या हुआ कि स्लेव्स की जगह पे लोग हायर्ड लेबर्स दे बिगेन टू प्रीफर एंड नाउ टू बी द फेड, एंड परहैप्स दिस वाज द रीजन नंबर ऑफ स्लेव्स स्टार्टेड रिड्यूस। और इस यही कारण था कि स्लेव्स के जो नंबर वो कम होने लगे और हायर्ड लेबर्स के नंबर ज़्यादा हुए। एंड रीजन नंबर और लेटर ऑन एग्रीकल्चर, और पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न प्रोविंस, खासकर जो ईस्टर्न प्रोविंस है उनके, रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे उसमें, ईस्टर्न प्रोविंसेस में हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया, उसके नीचे जर्मनी, और उसके बाद सीरिया और टर्की, ये इलाके उनके ईस्टर्न प्रोविंस में, और इराक। तो ईस्टर्न में ये दिस काइंड ऑफ द, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न प्रोविंस में स्लेव्स एंड द फ्रीमैन वेयर द वाइडली यूज्ड। यहाँ पे फ्री मैन को ज़्यादा यूज किया गया, एंड दे वेयर रिक्वायर्ड टू द लेस्ट नंबर। और इसके लिए इन्हें अब स्लेव्स को एग्रीकल्चर से न हटाकर उनको बिजनेस में इन्करेज किया गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस रिक्वायर्ड द लेस्ट नंबर ऑफ द स्लेव्स। बिजनेस में स्लेव्स की जो जरूरत थी या उनका मैन पावर्स का वो कम नहीं, अंडरस्टैंड, तो उन्हें कम लगाया गया। ओके, मोर ओवर अगर हम देखें कि फर्दर, और यहाँ पे देखा जाए कि स्लेव्स के साथ बिहेवियर कैसा होता है, ये यहाँ तो बिजनेस से और अदर मैनेजमेंट में उन्हें लगाया गया, लेकिन बिहेवियर स्लेव्स का, तो स्लेव्स बिहेवियर और इस पर कैसे नज़र रखी जाती थी, हाउ दे वेयर केप्ट। तो अटेंशन, नाउ मच अटेंशन वाज द मैनेजमेंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट में टू बी द वर्क परफॉर्म्ड वेल। तो इसके लिए उन पर एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट विजिल रखा जाता था, ध्यान नज़र रखी जाती थी। एंड नाउ, और ये कोलुमिला हु केम फ्रॉम द साउथ स्पेन इन फर्स्ट सेंचुरी में लिखा है, कोलुमिला ने लिखा है कि नाउ स्ट्रेस दैट लैंड ऑनर शुड कीप, स्ट्रेस देता है कि जो लैंड ऑनर्स हैं उन्हें
keep a reserve stock of implements. उन्हें reserve stock of implements tools they should have twice as many as they needed so that production could be the continuous. और इससे डबल टाइम्स उनको टूल्स रखना चाहिए कि प्रोडक्शन कंटिन्यूअस. और ही स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ बीइंग spent spent on making arrangements for additional implements tools was nothing as compared to the loss of production occurring because of the slaves sitting idle. वो कहते हैं कि आप लाख टूल्स बना डबल टाइम्स भी टूल्स कर लो, उससे कोई फायदा नहीं. अगर स्लेव्स क्या है, स्लेव्स अगर इडिल बैठ जाता है तो टूल्स क्या है, हु विल ड्राइव द टूल्स. अगर टूल्स जिसको ड्राइव करना है, टूल्स से परफॉर्मर वही बैठा रहेगा इडिल, वही सीट इडिल विदाउट वर्क, तो आपका टूल्स का कोई मतलब नहीं. आप इसीलिए उसने कहा कि आप टूल्स को डबल परचेस कर लो, टूल्स कर लो, कुछ भी खरीद लो, लेकिन देयर विल बी द नो प्रोडक्शन until the slaves will be deployed actively. जब तक उसको आप actively deployed नहीं करते. If you let them the seat idle, तो your or you will have the and you will keep and maintain the tools and an instrument that will do nothing, that will not help in the production. उसने स्पष्ट क्लियरली उसने कहा. इसलिए rather the slave should be the keep the very active and keep at the work very carefully and under the other word में हम कैसे under the strict supervision deployments उनकी होनी चाहिए. Now he talked about that, and moreover he said fully both free workers and slaves should be the fully supervised while at work. जब वो काम करते हैं, एनी वर्कर अगर वर्क करता है तो उस पर बहुत ही फुल सुपरविजन देना होगा. क्यों? अदरवाइज वाइल जनरली ऑल एम्प्लॉइज वुड प्रिज्यूम दैट नो वर्क वुड एवर गेट डन वेयर विदाउट द सुपरविजन. और ऐसा माना जाता है, ऑब्जर्व किया गया कि बिना विदाउट द सुपरविजन नो वर्क कैन बी द परफॉर्म्ड वेल. अगर कोई भी वर्क वेल परफॉर्म्स नहीं हो सकता विदाउट द सुपरविजन का. इसलिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज नीडेड फॉर द परफॉर्मिंग द वेल द एनी वर्क. किसी वर्क आप करा रहे हैं तो उस पर आपको सुपरविजन रखना, अदरवाइज वर्क विल नॉट बी द परफॉर्म्ड वेल. ओके, तो दैट्स स्लेव वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम में इस सुपरविजन पर बहुत इम्फेसिस किया गया. सेकेंड, जनरल हियर Columella recommended that the workers at work should be the grouped into groups of 10 each. और उसने आगे सजेस्ट किया Columella ने कि जब वो वर्क करते उसको ग्रुप में रखना चाहिए वर्कर्स को, कि सो दैट कि वन मैन कुड सुपरवाइज्ड वेल. अगर आप स्कैटर्ड रहेगा तो आप नहीं उसको सुपरवाइज कर, आपको जाना पड़ेगा सबके पास अलग अलग. लेकिन एक साथ अगर ग्रुप करके 10 एक ही जगह वर्क करेंगे तो वन मैन कैन सुपरवाइज द 10. लेकिन स्कैटर्ड रहेंगे तो दिस विल बी द वेरी डिफिकल्ट फॉर द सुपरवाइजिंग, उन पर सुपरवाइज करने के लिए. तो उसने यही कहा कि नाउ दिस शुड बी द ग्रुप्ड इन द 10 इज दैट कुड बी द सुपरवाइज इजीली, इंस्पेक्टेड स्ट्रिक्टली. उन पर बहुत इंस्पेक्शन उनका बहुत स्ट्रिक्टली हो. स्लेव्स वर्किंग इन ग्रुप वेयर यूजुअली चेन टुगेदर बाय देयर फीट्स. वहाँ पे जो काम किए जाते थे slaves were chained together by feet. सबके जो पैर फीट्स थे एक दूसरे से चेन्ड बांध दिया जाता था और वो ग्रुप्ड वर्क करते थे एक साथ, साइड बाय साइड. they were chained together and they worked together and one man supervised very strictly. This kind of the labor management was just prevalent in the Roman slave मैनेजमेंट में. वहाँ पे वर्क मैनेजमेंट में दिस काइंड एंड स्लेव्स वर्किंग ग्रुप यूजुअली चेन टुगेदर एंड दिस बिकेम क्लियर दैट लेबर मैनेजमेंट वाज वेरी केयरफुली टेकन इनटू द कंसीडरेशन इन दोज डेज. इसीलिए जो इतिहासकार हिस्टोरियन है जैसे प्लिनी है, प्लिनी द एल्डर, उसने लिखा नेचुरल हिस्टोरिकल लिखा है, नेचुरल
हिस्टोरिका इनकी बुक्स है। ये बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हैं और फेमस हिस्टोरियन। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे भारत के इतिहास के, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द रोम एंड इंडिया के बाद जो ट्रेड होता था उस वक्त एट द टाइम रोमन एम्पायर के साथ, उसके बारे में इसने बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है। तो नेचुरल हिस्टोरिका में इन्होंने लिखा है। और आगे वेरी फेमस बिटरली कंडेम द यूज ऑफ स्लेव गैंग्स। और उसने उसमें अपने नेचुरल हिस्टोरिका में स्लेव गैंग्स का उन्होंने बिटरली कंडेम्स किया है, क्रिटिसाइज किया, एंड टर्म इट ए वर्स्ट मेथड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। और इसको कहा कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शन और जो लेबर मैनेजमेंट है, सबसे वर्स्ट ये मेथड उसने कहा प्लिनी द रीचर, प्लिनी ने, प्लिनी द एल्डर ने ऐसा। ओके, तो बस बच्चों आज टुडे फॉर दिस, और नेक्स्ट हम लोग, थैंक यू वेरी मच टुडे